روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ کے باسیوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سوئی گیس کے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غوث کالونی، کرسچن کالونی، قائم والا میں گھریلو صارفین پریشان۔ خواتین کا کہنا تھا کہ جدید دور میں بھی ناشتہ بنانے کے لیے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ مظفر گڑھ کے باسیوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غوث کالونی، کرسچن کالونی، قائم والا میں گھریلو صارفین شدید پریشان ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ جدید دور میں بھی ناشتہ بنانے کے لیے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ موسم سرد ہوتے ہی مظفر گڑھ میں گیس غائب ہو گئی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کرسچن کالونی، غوث کالونی اور قائم والا میں صبح 5 سے صبح 8 بجے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ناشتہ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ دوپہر کو ہوندے تے غوث کالونی وچ اسے اتنی پریشان ہوندے، اسے لکڑی جلا جلا تے بچے کو سکول بھیجنے ہیں۔ غوث کالونی میں سارے نہیں ہیں، ایتھے کرشنا والی ادھر کالونی چ نہیں ہے۔ گیس اتنا مہنگا کر دیتا ہے اور پھر کوئی سانو گیس دی بھی کوئی لکڑیاں جلا دے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا جائے گا۔ متعلقہ اداروں کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ ایل پی جی سلنڈر مہنگا ہونے سے پریشانی ڈبل ہو گئی ہے۔ جی میں مظفر گڑھ غوث کالونی دی رہائشی ہاں، سی اتھا گیس کیا نہیں ہوندا۔ سویرے 5 بجے تو لا کے رات 9 بجے تک اسا بھا بلیندے لکڑیاں تے سلنڈر جلیندے سب سکول بھیجندے بالے کو اسا پریشان تھیندے۔ گھریلو خواتین کا مزید کہنا تھا کہ سلنڈر اور لکڑی جلا کر ناشتہ تیار کیا جاتا ہے، اخراجات بڑھنے کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں خواتین کو بھی صبح کے اوقات میں ناشتہ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خواتین کی جانب سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مظفر گڑھ کے گنجان آباد علاقوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان میں سوئی گیس کے نئے میٹرز لگوانے والوں کو لمبی انتظار کرنا پڑے گا۔ محکمہ سوئی گیس سے نئی درخواستیں وصول کرنا بند کر دی ہیں۔ محکمہ سوئی گیس کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹس ایشو کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نئے میٹرز لگوانے والوں کی ہزاروں درخواستیں روک لی گئی ہیں۔ شہریوں نے 2017 سے ڈیمانڈ نوٹس کے لیے درخواستیں جمع کرا رکھی ہیں۔ پرانے میٹر لگانے سے پہلے نئے کنیکشن نہیں لگائے جا سکیں گے۔ ڈیمانڈ نوٹس جاری ہونے والوں کے پرانے کنیکشنز بھی التوا کا شکار ہیں۔ ملتان شہر کا 6000 کلومیٹر کا پائپ لائن نیوٹرک ہے۔ ملتان ریجن میں 20,000 میٹر پہلے سے ہی پینڈنگ پڑے ہیں۔ شہر میں روزانہ کی بنیاد پر 60 میٹر نصب کیے جاتے ہیں۔ جی ایم سوئی گیس کا ایسا بتانا ہے۔ شہر میں روزانہ کی بنیاد پر 60 میٹر نصب کیے جاتے ہیں۔ سوئی گیس کے نئے میٹر لگوانے والوں کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ محکمہ سوئی گیس نے نئی درخواستیں وصول کرنا بند کر دی ہیں۔ سوئی گیس کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹس ایشو کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے صہیب گرمانی سے۔ گرمانی، یہ پابندی کیوں عائد کی گئی ہے؟ انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑے گا؟ جی بالکل، پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سوئی گیس کے جو نئی درخواستیں آئی ہیں ڈیمانڈ نوٹس کے لیے، ان پر پابندی عائد کی گئی ہے، کیونکہ پرانے کنیکشن جو تھے 2017-2016 سے جو کنیکشن پڑے ہیں 20,000 کنیکشن، وہ بہت زیادہ ہو گئے، ان کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ تو نئی آمد و رفت کی وجہ سے نئے میٹر جو ہیں لگانے کی کیپیسٹی نہیں تھی ان کے پاس، ٹینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی تھی ادارے کے پاس۔ جی ایم کا کہنا ہے کہ نئے میٹر جو ہیں نہیں لگ سکتے، اسی لیے پرانے میٹر جو ہیں 60 میٹر ڈیلی لگتے ہیں، اور ملتان پورے ریجن میں 100 میٹر ڈیلی لگایا جاتا ہے، اور 20,000 میٹر جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو نئی درخواستیں ہیں وہ موصول نہیں کر رہا ادارہ، اور ڈیمانڈ نوٹس جو ہیں وہ بھی ایشو نہیں کیے جا رہے ہیں عوام کو، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کی درخواستیں رکی ہوئی ہیں، اور 2017 سے درخواستیں رکی ہوئی ہیں جن سے ڈیمانڈ نوٹس ایشو نہیں ہو رہا، نہ ہی نئے کنیکشن لگ رہے ہیں۔ گرمانی، وجہ کیا ہے؟ کیا میٹرز کی قلت ہے سوئی گیس کے پاس؟ میٹر کی قلت، محکمہ کا کہنا ہے کہ میٹر جو ہیں ایشو نہیں کیے جا رہے، نئے میٹر نئی درخواستیں آتی ہیں تو میٹر جو ہیں محکمہ دیتا ہے، ہمیں نوٹیفیکیشن جاتا ہے، جاری کرتا ہے۔ پالیسی جو ہے محکمے کی وہ یہ ہے کہ سوئی گیس کے میٹر نئے میٹر نہیں جاری کیے جاتے، ایسا ایسا انہیں میرٹ پہ جو ہے لوگوں کو میٹر دیے جاتے ہیں، صارفین کو جو پرانے صارفین ہیں ان کو میٹر پورے نہیں کیے گئے، اسی وجہ سے جو ہے نئے میٹر نہیں جی آ رہے۔ بہتر، صہیب گرمانی، شکریہ آپ کا۔ شہری اولیاء کے باسیوں کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف دہائیاں، کہتے ہیں زندگی عذاب بن گئی۔ جی ایم سوئی گیس ملتان کا کہنا تھا کہ شہر میں ہر جگہ 24 گھنٹے دستیاب ہے، پھر یہ معاملہ ہے کیا؟ شہری اولیاء کے باسیوں کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف دہائیاں، کہتے ہیں زندگی عذاب بن گئی ہے۔ جی ایم سوئی گیس ملتان کا کہنا تھا کہ شہر میں ہر جگہ 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں زندگی عذاب بن گئی ہے، شہریوں کا ایسا کہنا ہے۔
शहरी कहते हैं कि सुई गैस आ नहीं रही, जबकि जीएम पर्दा डालने में मसरूफ हैं। कहते हैं कि 24 घंटों में पूरे शहर में सुई गैस दस्तयाब है। कहते हैं उन्हें शहरियों की जानिब से कोई कंप्लेन भी मौसूल नहीं हुई है। ये जीएम सुई नॉर्दर्न गैस का कहना है। अलीपुर के बासी साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए हैं। लाखों की आबादी के लिए सिर्फ 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। एक बिजली बिल की अदम अदायगी पर बंद पड़ा है, दूसरा चंद घंटों के लिए चलाया जाने लगा है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए हैं। अलीपुर के 8 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल शहर के बासी आज भी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। लाखों की आबादी वाले शहर में 2 छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स का बिजली के मीटर का बिल अदा न होने से मीटर कट गया, जबकि दूसरा प्लांट भी सिर्फ चंद घंटों के लिए चलाया जाने लगा। अलीपुर का 65% ज़ेर ज़मीन पानी मुज़र सेहत होने की वजह से शहरी बीमार पड़ने लगे। शहरियों का कहना था कि साफ पानी न होने से बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। ऐसे में साफ पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल कराने का मुतालबा किया है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान सफाई कंपनी की नहली बिलाल चौक अल मुस्तफा रोड कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। इलाके में ताफुन फैलने लगा है। मकीन शदीद परेशान है। इसी पर देखिए इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान सफाई कंपनी सफाई में नाकाम। बिलाल चौक अल मुस्तफा रोड पर कचरे के ढेर लग गए। इलाके में ताफुन के बहस बीमारियां फैलने लगी। मकीन शदीद परेशान है। गड्डी आई है, वापसी आई है, उन्होंने तासल सटन तले वाल लेके वापसी फेर गए। 1 to 5 दे बंदा है, उन्हें आगे पियर आवाडो मशीन आती है, वो ना गंद उठाती है, ना कुछ हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसे आती है, थोड़ा बहुत उठाती है और चंगी जाती है। इलाका मकीनों का कहना था कि कई हफ्ते कचरा उठाने कोई नहीं आता। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गंदगी के बायस इलाके की फिजा आलूदा हो रही है। ना कोई आता है ना कोई जाता है। गंदगी रास्ता, बच्चे गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, कोई परवाह नहीं है। सारा गंद यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और 7 घर हैं देख लें, और आमदोरफ्त वाला रोड है। बच्चे वगैरह इतनी स्मेल फैलती है, जरासीम का बायस यही बनता है। शहरियों का मजीद कहना था कि मस्जिद के सामने भी गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया फौरी तौर पर सफाई के मामलात ठीक करे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत खानेवाल के मरकजी कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर लगे हैं। स्ट्रीट लाइट चोरी कुत्तों ने बसेरा कर लिया है। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले शहरी खौफ में मुब्तला हैं। मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया है। खानेवाल के मरकजी कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि कब्रिस्तान में जा बजा गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जिसके बायस ताफुन फैला हुआ है। अमला सफाई के लिए कई माह कब्रिस्तान का रुख ही नहीं करता। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों का कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स चोरी होने के बायस रात के वक्त तदफीन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका मजीद कहना था कि मुतादिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी हलकों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। खुश्क मेवा जात खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। सर्दी के आगाज में खानेवाल में ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। मूंगफली भी महंगी हो गई है। निधि मुगल की रिपोर्ट। सर्दी की सौगात ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चिलगोजा 4800, पिस्ता 1900, अंजीर 1500 रुपए फी किलो, जबकि काजू 1200 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। बादाम गिरी 900 और मूंगफली भी 300 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना था कि महंगा ड्राई फ्रूट कुव्वते खरीद से बाहर हो गया। कीमतें तो डेफिनेटली हर चीज की बढ़ी है, तो ड्राई फ्रूट तो इफेक्ट हुआ है। तो ड्राई फ्रूट की प्राइसेस जैसे फर्ज करें चिलगोजा है, वो पिछले 20 साल से हमने शायद देखा भी नहीं है ना देखने की कोशिश की है। शहरियों का कहना था कि चिलगोजा का जायका चखे ही मुद्दत गुजर गई, जबकि दुकानदारों का कहना था कि कीमतें बढ़ने के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। कभी डॉलर बढ़ता है, कभी पेट्रोल बढ़ता है, तो चीजों पे इफेक्ट होता है। अब एक सस्ता आइटम मूंगफली था, अब वो भी महंगी है कच्ची, अब क्या करें। खुश्क मेवाजात के महंगे होने की एक वजह पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के साथ साथ खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर भी शामिल हैं। दिमाग को तरोताज़ा करने वाला ड्राई फ्रूट बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों की क़िमत खरीद से बाहर होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रदीफ मुगल, रोही टीवी, खानेवाल।
मियां वाली इंतजामिया की नियहली मुलाहिजा कीजिए, टमाटर सरकारी रेट से 50 रुपए महंगे फरोख्त होने लगे हैं। मुतलका इदारे खामोश हैं, शहरी चीख उठे हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियां वाली में सुर्ख टमाटरों ने शहरियों को गुस्से से लाल पीला कर दिया। टमाटर 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगे, जबकि सरकारी रेट 130 रुपए है। दुकानदार फी किलो के साथ 50 रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया और हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। कंट्रोल नहीं है, इंतजामिया का काम है कि वो हर जगह आके छापे लगाएं और कंट्रोल करें। हुकूमत तो रेट लगा देती है, लेकिन मुंतजिम आला जो होते हैं उनका काम है इंतजाम संभालना और उन पे कंट्रोल करना। शहरियों का कहना था कि एक तरफ महंगाई ने कमर तोड़ दी है, दूसरी जानिब माफियाज बेलगाम है, लेकिन जिले इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। हर शय बूँ मांगी थी गई, गोभी मांगी थी गई, आलू मटर हर शय मांगी थी गई। वसल अगे 100 रुपए दड़ी है, यहाँ 200 रुपए दड़ी थी गई। हुण मसले गरीब जड़ा है वो मसले मर्द है। खान साहब मसले ये कंट्रोल कर गए उसकी बल्ले बल्ले जिन्हें उदा ना पे चाहिए, लेकिन वो काम नहीं थी ना पे। सदर सब्जी बाजार इकबाल कसाब का कहना था कि टमाटर सब्जी मंडी से 170 रुपए फी किलो मिल रहा है, सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं। मंडी से लिए जाके मंडी से पूछ ले, किसी अफसर जाए, विधि आला जाए, हमारा डीसी साहब जाए, एसी साहब जाए, वो हम डीसी साहब जब जाते हैं तो वो कहते हैं 1200 रुपये 1500 रुपये। जब वो मंडी से निकल जाते हैं तो फिर वो कर देते हैं 1700 रुपये और 1800 रुपया। इस वजह से टमाटर महंगा है। शहरियों ने इंतजामिया से मसनूई महंगाई खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। सर्द मौसम आते ही अंडे की कीमत भी गर्म हो गई। बहावल नगर में अंडों की कीमत 200 रुपए फी दर्जन पर जा पहुंची है। शहरियों ने आला हुकाम से कीमतों में कमी के साथ महंगाई कंट्रोल करने का भी मुतालबा कर दिया है। बहावल नगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। मौसम सरमा के आगाज पर ही अंडों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। चिकन और दीगर अशिया के साथ साथ अंडे भी महंगे हो गए। रोहित से गुफ्तगू में दुकानदारों का कहना था कि पहले अंडों की कीमत 150 से 160 रुपए फी दर्जन थी, अब कीमत 180 से 200 रुपए फी दर्जन हो गई। मुल्क में बढ़ती महंगाई, आवाम के अखराजात आमदन से ज्यादा हो गए। ताजिर परेशान हैं। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनूबी पंजाब सदर शेख जावेद अख्तर की रोही से खसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा उनका मजीद क्या कहना है। बिल्कुल जी, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करें तो इस वक्त पेट्रोल का रेट 848 रुपए फी लीटर है, जबकि एलपीजी मार्केट में 220 से 230 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं ताजरों के, इसके साथ साथ महंगाई भी जो है वो होती जा रही है। घी की कीमत भी 400 रुपए से तजावुज कर गई है। मजीद चीनी भी जो 150 रुपए पे चली गई थी, रेट थोड़ा सा कंट्रोल होकर पाकिस्तानी मोटी चीनी का 130 रुपए पे है, लेकिन अभी भी ये गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के जनूबी पंजाब सदर शेख जावेद अख्तर। शेख साहब, बताइएगा बढ़ती हुई महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ भागती है, दौड़ती है उस गरीब के ऊपर। वो जो एक मुर्गी 10 किलो 20 किलो 30 किलो बेच रहा है, उसको पकड़ के जुर्माना करके अंदर कर दो। एसी साहिबान का ये पोजीशन है कि जी यहाँ पर चीनी मोटी ना बिके, बारीक बिके। यार आप मोटी दें या बारीक दें, आपका काम है ऊपर से रेट लेकर नीचे दें। फिर कोई दुकानदार ज्यादती करता, हम उसके साथ मुखालफत करेंगे। अगर आप कहेंगे जी चीनी बारीक बेचो मोटी ना बेचो, तो वो कहाँ जाएगा, दुकानदार नहीं लेता। एक जट आदमी वो ये कहता है यार ये 3 चम्मच डालता हूँ, वो सारी बातें हम समझ रहा हूं। मैं प्राइस कंट्रोल का मेंबर भी हूं कि वो समझ में आ रही है कि जो कुछ कर रहे हो, पर आप दुकानदार को जब 10,000 रुपए जुर्माना करते हैं उसकी चीखें निकल जाती हैं। जब आप उसके खिलाफ FIR देते हैं उसके 20 से 25,000 रुपए FIR को खत्म कराने में लग जाते हैं। तो और फिर जब दुकान सील करते हैं, अभी मंडी में जब दुकानें सील हुई हैं 5-6, वो पूरा दिन दुकानें बंद रही हैं। एक होलसेलर की एक दिन दुकान बंद होने की कीमत आपको अंदाजा नहीं है कितना है, और जुर्माना अलग भरा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इंतजाम वज़ीर आला साहब इस इंतजामिया को देखें और उन लोगों को पकड़ें जो ऊपर माफिया हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो माफिया है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में इनका काफी ज्यादा जो है वो रोल है। और अगर हुकूमत अपने वक्त में अगर माफिया पर काबू नहीं
और अगर हुकूमत अपने वक्त में माफिया पर काबू नहीं कर पाती माफिया को, तो उसका भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ती महंगाई पर गाड़ियों से वाबस्ता कारोबार करने वाले सनतकार भी शदीद परेशान हैं। सदर मोटर डीलर कार एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम का कहना है कि हुकूमत ने जो गाड़ियों के रेट्स बढ़ाए हैं उससे कारोबार खत्म होकर रह गया है। मजीद जानेंगे माजिद कलासरा से। कलासरा, कहिएगा क्या कहते हैं डीलर्स? हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें सनतकारों की, तो बढ़ती हुई महंगाई से सनतकार जो है वो काफ़ी परेशान है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के साथ जो गाड़ियों से वाबस्ता कारोबार करने वाले जो ताजिर बिरादरी है, उनकी मुश्किलात में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के साथ जो कस्टमर हैं वो जो है वो दुकानों का रुख भी नहीं कर रहे, और वो गाड़ियाँ खरीदने से भी जो उनकी जो कुव्वत खरीद है वो खत्म हो चुकी है। सदर मोटर डीलर कार एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम साहब मौजूद है। चौधरी बताइएगा, आए रोज़ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होता है, दूसरी जगह डॉलर महंगा होने से गाड़ियों के रेट्स पे भी इफेक्ट हो रहा है, और आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है? हमसे सबसे बड़ी मुश्किलात है कि गाड़ियाँ जब बढ़ती हैं तो गाहक की आमद कम हो जाती है। दूसरा ये है कि गाड़ियाँ पहले जब बढ़ती थी 20,000, 50,000, 30,000, 40,000 तक बढ़ती थी, अब 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक गाड़ियाँ की कीमतें बढ़ी हैं। उसमें ये होता है कि जो लेने वाला गाहक है वो तो फिर अवॉइड ही करेगा जब इतने पैसे हो जाएंगे। लेट से आपकी ये जो आल्टो है ये 13 लाख की गाड़ी थी, तो अब ये 16 लाख की हो गई है। तो 3 लाख रुपये टू मच एक छोटी सी गाड़ी पे जो आम सवारी है लोगों के लिए, और कोई ये अयाशी नहीं है, ये एक इस्तेमाल के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शहर के लिए, उस पर आपने 3 से 4 लाख रुपये बढ़ा दिए, किसी पे 5 लाख रुपये बढ़ा दिए। तो ये गवर्नमेंट हमारी समझ में नहीं आ रही। उनका कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई को जो वो कंट्रोल किया जाए, और इसके साथ साथ डॉलर की कीमत नीचे आने से जो गाड़ियों के रेट्स हैं उनमें भी जो वो कमी वाक़ई होगी। उनका कहना था कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से एक तो उनका कारोबार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, इसके साथ साथ जो शहरी हैं जिनकी इतनी कुव्वत खरीद सकत नहीं है वो खरीद नहीं सकते, तो गाड़ियों की कीमतों में इजाफे। बेहतर माजिद कलासरा, आपके शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मरकजी अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर एक रोज़ा दौरा पर बहावल नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ताजिर नुमाइंदगान और मीडिया से खिताब किया है। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने 30 नवंबर को इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, क्या अपडेट्स हैं? अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हम नईम मीर साहब जो एक रोज़ा दौरे पर आज भावन नगर पहुंचे, अंजुमन ताजरान के अहदेदारों से खिताब किया और कॉल दी है कि हुकूमत के खिलाफ 30 नवंबर को जो धरना दिया जाएगा। तो क्यों धरना देने जा रहे हैं, क्या मुतालबात है ताजर बरादरी के, तो बात कर लेते हैं नईम मीर साहब। तो सर बताइएगा, 30 नवंबर को धरना देने जा रहे हैं, क्या मुतालबात है जो एहतजाज कर रहे हैं? देखिए जी, पूरे मुल्क की जो ताजर बरादरी है वो इस वक्त सख्त परेशान है, मुस्तरब है, और ताजर बरादरी जो है वो समझती है कि सेल्स टैक्स की जबरी रजिस्ट्रेशन और POS लगाने की सूरत में अवाम पर मज़ीद 17% इजाफी टैक्स का बोझ बनेगा, और कमर तोड़ महंगाई और जानलेवा महंगाई में ये मुमकिन नहीं है कि अवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाए। लिहाजा हम अवाम को ज़ालिमाना टैक्सों से निजात दिलाने के लिए और पाकिस्तान भर की ताजर बरादरी को पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन से निजात दिलाने के लिए हम जो हैं वो ये धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स हम अदा कर चुके हैं सोर्स पर, और दोबारा सेल्स टैक्स लेना जो है ये दोहरी टैक्सेशन है, और इसे हम नामंजूर करते हैं। जी बिल्कुल, ये थे मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब, जिनका कहना था कि 30 नवंबर को वो जालमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी जो है वो वहाँ पहुँचेगी, हुकूमत के खिलाफ धरना दिया जाएगा और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कासिम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के पैदर पे वार दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार, दिहाड़ी ना मिलने पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ लिया के मजदूर सराप एहतजाज। कहते हैं दूर दराज से मजदूरी के लिए आए हैं लेकिन खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। मुल्क में कई 100 गुना बढ़ती महंगाई से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका पिस कर रह गया, जो सुबह सवेरे रोजी की तलाश में दूर दराज का सफर करके लिया शहर में पहुंचते हैं, मगर मजदूरी न मिलने पर मायूस वापस लौट जाते हैं। सरापा एहतजाज मजदूरों का कहना था कि हुकूमत दावे बहुत करती है मगर मजदूरों को आज तक कोई रिलीफ नहीं दिया। 500 रुपए की दिहाड़ी में अपना खर्चा पूरा नहीं होता तो घर वालों के अखराजात कैसे उठाएंगे? मजदूर गुलाम फरीद, जहूर हुसैन, अकबर खान और दीगर का कहना था कि हुकूमत के साथ मुखय्यर हजरात भी मजदूरों की हालत जार पर रहम करें। मुल्तान में खाद की ज़ख़ीराअंदोज़ी और ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद के शहर भर में छापे। ज़ख़ीराअंदोज़ी और ग्राम फरोशी पर 7 खाद डीलर्स को 60,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया।
आपको बता रहे हैं मुल्तान में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने शहर भर में छापे मारे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर 7 खाद डीलर्स को 60,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। ये फाइनेंस ब्रांच ने माली साल 2021 और 22 के पहले 4 माह की टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। टाउन प्लानिंग की मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में होने वाली रिकवरी में इजाफा हुआ है। मुल्तान टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट में पहले 4 माह बजट टारगेट से 29% ज्यादा इजाफे के साथ आमदन हुई। तर्जुमान एमडी के मुताबिक टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट में 4 माह में कमर्शलाइजेशन की मद में 83.33 मिलियन टारगेट रखा गया था। जी हां, एमडीए फाइनेंस ब्रांच ने माली साल 2021-22 के पहले 4 माह की टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। टाउन प्लानिंग की मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में होने वाली रिकवरी में इजाफा देखने में आया है। मुल्तान टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट में पहले 4 माह बजट टारगेट से 29% ज्यादा इजाफे के साथ आमदन हुई है। तर्जुमान एमडीए के मुताबिक टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट में 4 माह में कमर्शलाइजेशन की मद में 83.33 मिलियन टारगेट रखा गया था। मुल्तान के बासियों को मिलेगी अब तजावुजात से मुकम्मल निजात। जिला भर में तजावुजात के खात्मे के लिए जोनिंग पॉलिसी नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। बल्दियाती नुमाइंदों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। शहरी औलिया के वासियों के लिए अच्छी खबर है। जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खात्मे के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली, जबकि जिले भर में तजावुजात के खात्मे के लिए जोनिंग पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया गया, जिसके तहत मुल्तान को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जोनिंग पॉलिसी की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। ताहम इस सिलसिले में बल्दियाती नुमाइंदों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अबान ने पुलिस अफसरान को क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम को इंसाफ की फराहमी हर हाल में यकीनी बनाई जाए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अबान ने पुलिस ऑफिसर्स को क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि आवाम को इंसाफ की फराहमी हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने दफ्तर की सब्जाजार में खुली कचहरी लगाई है। अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकाम भी जारी किए हैं। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने अपने दफ्तर के सब्जाजार में खुली कचहरी लगाई। इस मौका पर उनका कहना था कि हमारे दफातर में हर वक्त खुली कचहरी होती है, अवाम के मसाइल उनके दरवाजे पर हल किए जाते हैं। डीपीओ भक्कर का कहना था कि खुली कचहरी में अवाम अपने मसाइल खुलकर बयान कर सकते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की खानेवाला आमद हुई। एमएनए अक़लियती विंग नवीद आमिर जीवा और सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम समेत दीगर ने अक़लियती रहनुमाओं से अहम मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की खानेवाल आमद एमएनए अक़लियती विंग नवीद आमिर जीवा और सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम समेत दीगर अक़लियती रहनुमाओं से अहम मुलाकात हुई है। एमएनए अक़लियती विंग नवीद आमिर समेत दीगर की अक़लियती रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। ज़िमनी इलेक्शन पीपी 206 के इंतखाबात पर मुशावरत भी की गई। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। नवीद आमिर का ऐसा कहना है। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, अवाम की खिदमत करती है। अवाम 16 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर जिला मुल्तान में खसरा से बचाव की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के हुक्म पर घर घर टीम जाकर 9 माह से 15 साल के बच्चों को खसरे से बचाव के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सीओ हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरमानी ने कहा कि 12 रोजा मुहिम के दौरान 20 लाख से ज्यादा बच्चों को खसरा इंजेक्शन लगेंगे। इस मकसद के लिए 1267 टीमें घरों में जाकर वैक्सीन अमल में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर शुएब गुरमानी ने कहा कि खसरा मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। कबल ज़ीन फोकल पर्सन खसरा मुहिम डीएचओ प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर अली मेहदी ने कहा कि खसरा मुहिम के अहदाफ हर सूरत हासिल किए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को खसरा वैक्सीन लगवाएं और उनको बीमारियों से महफूज रखें।
उधर दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 364 WB इलाके की मरूफ रूहानी शख्सियत पीर साईं जी सरकार की 66वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहां पर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 364 WB के इलाके में रूहानी शख्सियत पीर साईं जी सरकार के 66वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक की तकरीबात सजादा नशीन दरबार आलिया साईं जी सरकार डॉक्टर मकसूद अहमद ने दुआ फरमाई और उसकी तकरीबात में महफिल समा में आलमी शोहरत याफ्ता कवाल उस्ताद शेर मियादात ने कवाली पेश की। महफिल समा इलाके के लोगों की भरपूर शिरकत। साईं जी सरकार के उर्स में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्तान में दरबार हजरत नवाब सखी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। उर्स के पहले रोज की तकरीबात का आगाज दरगाह पर चादर चढ़ाकर किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा अहवाल। जी बिल्कुल, हज़रत सखी नवाब के 405वें उर्स की जो तकरीबात है उनका बाकायदा आगाज़ जो है वो दरगाह पर चादर पोशी से किया गया है, जिसके अंदर गिलानी ख़ानदान की जो है वो शिरकत हुई है, जिसमें सजादा नशीन सैयद ज़ुहैब गिलानी, राजन बख्श गिलानी और इसके साथ साथ मखदूम जज़दानी गिलानी की जानिब से चादर पोशी भी की गई है। बात भी करेंगे 405वां उर्स, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गौसुल आज़म के शहजादे हज़रत पीर सखी नवाब रहमतुल्लाह अलैह का 405वां उर्स शरीफ हो रहा है। ये इतना तारीखी दरबार है कि इसकी तामीर जो है ये मुगलिया दौर में इसकी तामीर हुई थी और आज भी वो मुगलिया दौर की पतली बारीक ईंटें और वो फारसी की शायरी इसके अंदर दर्ज है। और इसकी खास जो बात है, इस दरबार का छत नहीं है। ये बगैर छत वाला दरबार पूरे मुल्तान और बल्कि बड़े सगीर में मशहूर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन, मस्तूरात और मर्द हजरात आते हैं जो अपनी मनते मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला उनकी मनते मुरादें कबूल फरमाते हैं। मखदूम साहब, कैसे देखते हैं कि बड़े सगीर के अंदर जो इस्लाम है वो औलिया अल्लाह की जो खिदमात है उनकी बदौलत फैला? हजरत सखी नवाब का भी 405वां उर्स है, कैसे खराज? सिलसिला गिलान कादरिया गौसल आजम का शुरू बुनियाद हुई है बरे सगीर में इस्लाम की तबलीग के लिए पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह महबूब सोबानी उस शरीफ से। ये उनकी औलादें सारी आगे चल रही हैं। जहां सिलसिला गिलानी आएगा, सिलसिला गौसल आजम आएगा, सरकार मूसा पाक शहीद की बात होगी, सरकार नवाब सखी की बात होगी। हजरत गौसल आजम की औलाद की बुनियाद उस शरीफ है, हम उनकी औलादें हैं। वो बड़े भाई हैं, ये मूसा पाक शहीद के बेटे हैं और सरकार नवाब सखी का बड़ा किरदार रहा है इस्लाम की तबलीग में और मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी। जुनैद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजूरी बनी ना मजबूरी नाज़रीन। जामपुर के बाहिम्मत नौजवान ने मिसाल कायम करती। दोनों बाजुओं से महरूम मोहम्मद इस्माइल घर के कामकाज, नमाज के लिए वुजू और खेती बाड़ी खुद करता है, हत्ता के पैरों से निशानाबाजी का भी माहिर है। इसी पर देखिए जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। इस नौजवान का नाम है मोहम्मद इस्माइल, जिसका ताल्लुक इलाका मसीत वाला बदराव से है। इस्माइल 5 साल का था जब इसके बाजू ट्यूबवेल में आकर कट गए थे, मगर नौजवान ने हिम्मत न हारी। इस्माइल एक बेटी का बाप भी है, जिसने माँ बाप और भाइयों पर बोझ बनने की बजाय यूट्यूब चैनल बनाया, जहाँ से वो 20 से 25 हजार कमाकर अपने अहले खाना का पेट पालता है। मैं 5 साल का बच्चा था, मेरे हाथ दोनों ट्यूबवेल के अंदर आ गए। इसके बाद मैंने देखा लोगों को काम करते हुए, मेरे दिल ने भी कहा यार ये काम इसमें करो। मैं कोशिश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, मोटरसाइकिल भी चला लेता हूँ। बाहिम्मत नौजवान के रिश्तेदार अल्लाह यार का कहना था कि इस्माइल खेती बाड़ी समेत दीगर कामकाज खुद करता है, जो अहले इलाका के लिए एक मिसाल है। मेरा हमसाया भी है, मेरा कज़न भी है, तो बहुत अच्छा नौजवान है। ये छोटे ला बचपन के नहीं हाथ कटीज गए, लेकिन ये महताजी नहीं किता। ये बहुत दे टैलेंट है, अपना राड़ दा काम ही कर गिंदे, ट्रैक्टर भी चला गिंदे, मोटरसाइकिल भी चला गिंदे, लेकिन बहुत यानी कि माँ प्यो दे बोझ नहीं बनया है। मोहम्मद यूनिस नामी नौजवान का कहना था कि मोहम्मद इस्माइल उनके इलाके का काबिल फख्र नौजवान है, जो माजूरी के बावजूद हालात का डट कर मुकाबला कर रहा है। आज के इस दौर में भी मोहम्मद इस्माइल ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपनी माजूरी को मजबूरी बनने दिया। अपना निजी एक यूट्यूब चैनल बनाकर मोहम्मद इस्माइल
अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है और ये अपने वालिदैन पर बोझ भी नहीं बनता। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।